दोस्तों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोला कि 8वां वेतन आयोग जवानों को अलग से होना चाहिए और कई सवाल पूछे उन्होंने कि अभी अफसर कौन ज्यादा बन रहा है, अग्निवीर का क्या हाल होगा और बॉर्डर सिक्योरिटी, कई तरह का जो उनका एक पॉडकास्ट इंटरव्यू है वो देखा। Now I'll take you ahead as far as the X factor is concerned. Okay. I always talk about the X factor, and I remember giving a talk to the IIT Kanpur students why a soldier walks into the hail of bullets. And this is what is the X factor all about. So any pay commission, when it comes up, we always request that pay commission please take care of the X factor, because that soldier voluntarily walks through the hail of bullets, and that is what till the time you have agreed and understood and you give him some kind of a compensation. It's not a compensation. It is the national recognition of the nation towards the sacrifice of the soldier, which is ready to do from day one. That his family will be taken care of when he walks into that hail of bullets. वो burden नहीं है to think कि मेरे बाद क्या होगा. वो भी है, and when he's alive also, to keep him motivated. Look, we recognize your services. That's why this X factor is always given. सबसे पहले उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि जो एक्स फैक्टर उन्होंने कानपुर आईआईटी के लिए बोला था कि एक जवान या एक जेसीओ या एक अधिकारी जब सेना में जाता है तो बुलेट को फेस करता है, यानी मौत को फेस करता है। अब उसको फेस करता है, वो कभी भी इंसिडेंट हो सकता है और तमाम प्रकार के इस तरह इंसिडेंट हो रहे हैं। फिर उसकी सैलरी के लिए, यानी 8वें वेतन आयोग को लेकर कहा उनके लिए सरकार को अलग सोचना चाहिए। ये बहुत दिनों से बात चली आ रही है, तो अब बहुत सारे प्रहार भी हो रहे हैं कि अरे सेना के अधिकारियों को अलग फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, जेसीयू जवान को अलग फिटमेंट पड़ेगा। लेकिन जनरल द्विवेदी साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि नहीं, हम सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे, क्योंकि जवान की जिंदगी कभी भी जा सकती है और उनके परिवार का जीवन किस तरीके से करे ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। यानी तो लेकर के उन्होंने इशारा किया है कि सरकार के सामने हम ये बात रखेंगे कि जवानों को 8वें वेतन आयोग को लेकर के कुछ अलग दें, बाकियों की तुलना नहीं। उन्होंने बहुत बड़ी बात की, तुलना ही नहीं की। बोला ये एक्स फैक्टर, तुलना का सवाल ही नहीं होता है। बोला हमारी तुलना किसी से नहीं की जानी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उनसे पूछा गया कि अग्निवीरों का क्या होगा। उन्होंने कहा है अभी पहला बैच जाएगा, हम देख रहे हैं अग्निवीरों को लेकर के सारी चीजें स्टेबल हैं, इसके बारे में बात बोला। In the military side, you have seen that from the battalion commander till corps commander level, we have allowed people to talk to each other, so that wherever there is some kind of a doubt, we can raise the level and resolve it. But all this is dependent on the SR meeting which took place under NSA, and the empowerment has been given to WMCC. I have empowered all the corps commanders along the line of actual control to make sure that whatever issues can be resolved at their level where there is a misinterpretation of understanding and which can escalate to violence, that should be something. So we had what are we looking at, that is there a requirement for us to look into that do we need to reduce the troops, do we need to kind of have more confidence building measures. So all this will only take place once we come to a common point. Okay, from here we will start, and these are the steps which will follow. So once the steps are decided how to go about it, फिर उन्होंने कहा है कि लोग अफसर क्यों नहीं बनना चाहते। उन्होंने कहा है हाँ, पहले सेना के अधिकारी अफसर बनते थे, लेकिन अभी जेसीयू जवानों के बच्चे बहुत अधिकारी आ रहे हैं। और उन्होंने बोला कि उनको भी लगता है, क्योंकि वो बचपन से आर्मी और केवी में पढ़े हैं, उस माहौल को उन्हें पसंद है। और उसके बाद उन्होंने बोला you will find that the intelligencies, the security forces and enforcement agencies, NIA and others, all three have joined hands together to help Awam to come up on its own. And now you have injected the development. Once you've done all these things, definitely there will be a sea change. And that's why we are saying that our theme of terrorism to tourism is actually seeing signs of success today. More than 5 lakhs in Amarnath Yatra, it was never heard of earlier. कि यानी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए पे अपनी बातें कहीं दोस्तों। अब इस प्रकार पैसे की बात कह रहा हूं, अब मैं पैसे की बात कह रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज, पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को बहुत बड़ी जिम्मेदारी। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही समाप्त होगा। वह दिसंबर 2018 में रिजर्व बैंक के गवर्नर नियुक्त किए गए। 10 दिसंबर 2024 को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है हुआ था। आदेश के मुताबिक वह प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 1 डॉक्टर पीके मिश्रा के साथ पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में। दोस्तों ये मैसेज मैं बता रहा हूं कि इस बार इनके मन में तो कुछ है दोस्तों।
आप फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे हो, आप पे पेंशन की बढ़ोतरी की बात कर रहे हो, उन्होंने आपने देखा होगा आरबीआई के गवर्नर को अपनी टीम में शामिल किया है। तो बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये टटोलेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। और आप देख सकते हो अमित शाह जी का भी आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा। जब मोदी जी आप सबको जनधन अकाउंट दे रहे थे, राहुल बाबा कह रहे थे अकाउंट तो दोगे, अकाउंट में ट्रांसफर क्या करोगे? राहुल बाबा आज ये मोदी जी का चमत्कार देखिए, 10 लाख लोगों को घर की पहली किस्त एक ही क्लिक से ट्रांसफर वो ही अकाउंट में हो रही है। भाइयों बहनों, 20 लाख लोगों को एक साथ घर देने का कार्यक्रम, जब देवेंद्र जी का फोन आया मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 20 लाख लोग जिनके जीवन में एक स्वप्न हो कि मैं खुद के घर में रहूं, वो सभी लोगों का स्वप्न आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर पूरा हो रहा है। मैं देवरिया उत्तर प्रदेश के एक गांव में था, मुझे बरोबर याद है, एक माई ने जब पहली बार घर मिला, उसने कहा मेरी 7वीं पीढ़ी खुद के घर में रहेगी, ये मेरा जीवन धन्य हो गया। आज 20 लाख लोगों को खुद का घर मिल रहा है, घर के अंदर शौचालय मिल रहा है, ऊपर सोलर पैनल भी मिल रहा है, और आपको आने वाले दिनों में गैस का सिलेंडर भी मिल जाएगा। ये सारी चीजें एक साथ पूरी करने का काम नरेंद्र मोदी जी और यहाँ पर महायुति की सरकार ने। उन्होंने कहा है घबराने की जरूरत नहीं है, जनधन योजना हो, मकान हो, हम देश को सब कुछ देंगे, हमारे पास यंत्र है, हमारे पास यंत्र है। उन्होंने कहा है राहुल गांधी को ये सब सोचने का कोई अधिकार नहीं है। और लग रहा है इस बार आपने देखा होगा बजट से पहले और बजट के बाद जो भी चर्चा चल रही है, तो आपको आर्थिक टैक्स छूट और ईएमआई कम करना, तमाम ऐसी चीज़ों के लिए उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री ने ये जो कदम उठाया है, आप समझ सकते हो कि आरबीआई गवर्नर जो रिटायर्ड हो गए थे उनको अपने नज़दीक बुला लिया, क्योंकि इस बार उनका पूरा टारगेट है। उन्होंने कहा है मैं थर्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा हूँ और आगे पैसे की कोई परवाह नहीं करना, पैसे की परवाह नहीं करना। तो दोस्तों कुछ चौंकाने वाला तो मिलेगा दोस्तों, तो अब चौंकाने वाला मिलेगा। अब चौंकाने वाला कितना भी मिले तो आप जानेंगे कि यानी फिटमेंट फैक्टर जवानों के लिए अलग होगा, ये अलग बात है, लेकिन आगे क्या होगी। लेकिन इस बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पहली बार सरकार के सामने जवानों की चीजें रखी। उन्होंने कहा है हमारी तुलना किसी से मत करो और अब आप देख लो कि आपने क्या करना है। धन्यवाद।